کسی کے ذہن میں سوالوں کو کر لیں اور عورتوں کی طرف سے کچھ سوالوں کو لکھ کے بھیجیں. پہلا سوال عورتوں کی طرف سے یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. شادی میں عورتیں میک اپ کر کے جاتی ہیں، کیا یہ جائز ہے یا بے پردگی ہے؟ دیکھو میری بہن، اگر صرف عورتوں کا فنکشن ہے اور وہ میک اپ کر کے جاتی ہے، تیار ہو کے جاتی ہے، زینت اختیار کر کے جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عورت مرد کا خلط ملت ہے تو بالکل سادگی سے جانا چاہیے. اور کیونکہ زینت جو ہے اسلام کو اسے روکنے پڑ رہی ہے. اور میری بیوی نے بہترین طریقہ اختیار کر لیا، میں ایک سال سے دیکھ رہا ہوں تو برقع ہونے جاتی ہے. کوئی نئے کپڑوں کا چکر نہیں ہے، کوئی میک اپ کا چکر نہیں ہے. تو یہ بہترین ہے. معاشرے میں چلن آ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس بات کے لیے کنوینس کر لیں کہ آپ برقع ہو. بہترین اردو طریقے دو خوبصورت ہوتے جو مطلب ایک فنکشن میں جا رہی تو وہ بہت ساری خرافات سے بچ جائے گی، بے پردگی سے بچے گی اور الٹے سیدھے بے ہو جائے گی. اب کسی کے ذہن میں بات. جی بھائی، اگر کوئی انسان اسلام کو پسند کرے اور کچھ حد تک کے فالو بھی کرے اور لیکن کلمہ نہ پڑھتا ہو تو کیا وہ مسلمانوں میں گنا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اسلام کو پسند کرے، نیکی بھی کرتا ہو لیکن کلمہ نہ پڑھتا ہو تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ نہیں بھائی، اصل میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ وفاداری ہے، اللہ رب العزت کی وفاداری. ایک بار کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد جہاں جہاں قرآن میں ذکر آیا نا کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، تو پہلے ایمان کا ذکر ہے. آپ اگر نیک عمل کر رہے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو یہاں آپ کو تو بہت فائدہ ملے گا، عزت ملے گی، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ہے ان کی پتیائی ہوگی، آپ کو یہاں محل مل جائیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں چاندی اور سونے کر دوں جن کے لیے یہی سارا کچھ ہے، وہ یہاں جتنی بھی نیکی کریں گے ان کو بدلہ یہی ملے گا. آپ کو میں ایک مثال دوں، میں بہت نیک آدمی ہوں، مان لو بہت مدد کروں لوگوں کی، اور بہت لوگوں کے کام آتا ہوں، بیواؤں کی خبرگیری کروں اور NGO چلاتا ہوں، بہت زیادہ مال بھی بانٹتا ہوں. اور کسی دن میرے گھر میں چھاپا پڑے پتہ یہ لگے کہ میں کسی غیر ملک کا دلال ہوں یا کسی غیر ملک کا مخبر ہوں، تو سب سے پہلے وہ وفاداری اپنے ملک سے ہوگی، تب میری وہ نیکی کام ہے. تو ہمیں سب سے پہلے وہ وفاداری اپنے اللہ سے ہوگی، تب ہماری نیکی آگے کام ہے. ایک نمبر پہ ایمان ہے، اس کے بعد پھر سارا کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اور جو پیغمبر دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، ان کی نافرمانی جو امت تھی، ان کی نافرمانی کے اوپر جو عذابات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو آپ بتاؤ اسلام کے زمانے کے اندر جو ان کی امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی تو ان کو ایٹ اے ٹائم عذاب کیوں نہیں دیتے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے اور نبیوں کے آنے پہ اور کہنا نہ ماننے کا عذاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں نے جنہوں نے کہنا نہیں مانا ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اصل میں دو باتیں پائی. ایک تو ان نبیوں کے بعد پیدا نبی آنے تھے، عذاب آنے کے بعد قوم کو ختم کیا، جو لوگ ایمان میں ہیں انہیں بچا لیا، ان سے آگے نسل چلی. تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی امت نہیں آئی. تو قیامت تک کے لوگ جو ہیں ان کی امت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ اس طرح کا اجتماعی کوئی عذاب میری امت پہ نہ آئے کہ جو ساری ختم ہو جائے. تو نبی کو خود رحمت العالمین کہا تو وہ صحابہ رحمت تھے، وہ رحمت اپنی امت میں بھی. ہم کیسے ہیں اندازہ کرو، نبی ہمارے لیے کیسے تھے کہ رات میں ایسے ہمارے لیے چڑھاتے تھے، ایسی آواز آتی تھی سیدھے جیسے حامی کھا رہی ہے. اور ہم کون سا ایسا کام ہے جو نبی کے خلاف نہیں کر رہا ہے؟ اس کے باوجود نبی یہ دعا کر کے کہتا ہے ایسا کوئی عذاب میری امت پہ نہ ہے. یہ ہے وہ وجہ. تو جب ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمیں بھی رحمت کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے. قرآن میں اللہ نے سورۃ زمر میں کہا کہ اگر تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کوئی بات نہیں، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا، میری رحمت سے کم قیمت ہوں. تو اگر ہم میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو بالکل اسے توبہ کر کے اللہ سے معاف کرو. ہاں جی. ہم کسی کامل مصروف ہیں لیکن موبائل کے ذریعے یا پھر قرآن شریف کی تلاوت سن رہے ہیں اور اس میں سجدہ آ جاتا ہے پڑھتے وقت، تو کیا ہم پہ وہ سجدہ واجب ہو گیا اور اسے کب ادا کریں؟
इनका सवाल ये है जो तिलावत के सजदे आते हैं क्या वो वाजिब हैं, उसे कब अदा करें? भाई हाथ के हाथ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं तिलावत के सजदे। दूसरे में वजाहत कर दूं, तिलावत का सजदा वाजिब नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, कभी आप भूल गए तो आपको कोई गुनाह नहीं, करेंगे बहुत सवाब। हाँ जी, इनका सवाल यह है कि अल्लाह का डर कैसे पैदा हो? देखो ये असल में आपको नफे नुकसान का मालिक मानना पड़ेगा। पहले मैं आपको मिसाल दूं, आप अपने ग्राहकों को देखो ना, आप किस तरह उन्हें खुश करते हो, क्योंकि आपको उनसे माली फायदा है, तो आप उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो बुरा मान के जान जाएगा आप लोग तो भाई मैंने कम कर दिया, इसलिए मैंने तुझे इस चीज के बदले में एक चीज बदल दी थी, तू नाराज ना हो। ये जो आपको फिक्र है कि नाराज हो जाएगा, आपका असल में नफा नुकसान जुड़ा हुआ है और वो माल के लिए जो सिर्फ आपकी यहाँ तक की सांसों तक का आपके साथ माल। अगर आप नफे नुकसान का आखिरत हो या दुनिया हो उसका मालिक अल्लाह को मान लेंगे ना, तो आपको वैसे ही डर होगा जैसा आपको अपने कहा के नाराज होने का डर होगा कि वो मेरा मालिक है, वो नाराज ना हो जाएगा, मेरा नुकसान ना हो जाए, फिर आपको अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी और उसका डर पैदा होगा। शब बारात में क्या करना चाहिए? इनका सवाल ये, शब बारात में क्या करना चाहिए? रात में इबादत करनी चाहिए, शब बारात में हर रात में करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब रात की रात में एक सही रिवायत है कि वो कब्र काम के, तो जो लोग सारे साथ इबादत करते हैं रात में उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी जागने की, लेकिन जिन लोगों को एक चांस मिला कम से कम एक ही रात की सही 15 साल की उसी में जागना, लेकिन इस वजह से जागना कि मेरा तो पता चल जाएगा, मेरा तो हिसाब किताब होगा, इसमें मरने जीने वालों का हिसाब होगा, सब बेकार की बातें हैं। वो लज़्ज़तुल क़द्र है जो रमजान में जिसके बारे में नबी ने कहा कि आखिरी अशरे में तलाश हो, उसमें कहा है कि फरिश्ते फैसले लेके उतरते हैं, तो वो रात वो है जिसे ये रात बना लिया गया। इस जंग में से मत जागना भाई, ये बिदअत है। तो अगर आप जागते हैं, इबादत करते हैं, कोई हर्ज नहीं, रोजे भी रखते हैं, कोई हर्ज नहीं। नबी 3 रोजे रखते थे हर महीने के, तो अगर आप साथ में 1-2 रोजे आगे पीछे के जोड़ेंगे तो आप बिदअत से ही बन गए, नबी की सुन्नत पे आ जाएंगे। रात में आप इबादत करते हैं इस नियत से कि नबी रात में इबादत करते थे, इस वजह से कि आज हमारे जमाने में पत्ता झड़ने वाला है या मेरे वालिद का पत्ता झड़ने वाला है, कोई नहीं रोक सकता जिसका पत्ता झड़ना अल्लाह ने लिख दिया, वो फैसले होंगे और वो शबे कदर में आने वाले हैं। क्या शौहर बीवी को मरने के बाद देख सकता है, कंधा दे सकता है, कब्र में उतार सकता है, क्या निकाह टूट जाता है? इनके कई सवाल है, एक ही सवाल में क्या मरने के बाद शौहर बीवी को देख सकता है, क्या उसे कंधा दे सकता है, क्या उसे कब्र में उतार सकता है, और क्या निकाह टूट जाता है? निकाह तो टूट जाता है इस दुनिया में निकाह, और अगर वो दोनों एक हो तो इंशाअल्लाह जन्नत में उनके द्वार से निकाह होंगे और मियां बीवी होंगे। कंधा भी दे सकता है, जब आम लोग दे सकते हैं जिससे पूरी जिंदगी के साथ लगाई तो कंधा भी दे सकता है और देख भी सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में था, तो हुजूर की रान में सर रखने लगी, दर्द बहुत आ रहा था, तो हज़रत आयशा इस तरह के सवाल करती थी, कम उम्र थी ना, बच्ची थी, कि हुजूर अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? तो हुजूर ने कहा तुझे कफनाऊंगा, तेरे लिए दुआ करूंगा, तुझे गुस्ल दिलाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आंख मीच के हुजूर उन्हें कफनाते या उन्हें गुस्ल देते, देखना तो इससे साबित है। और गुस्ल में मैंने शायद किसी प्रोग्राम में बताया था कि हज़रत अली ने हज़रत फातिमा के गुस्ल में, जब हज़रत फातिमा की डेथ हो गई, मदद की हिसाब याद, इसलिए कंधा देने में कोई हर्ज नहीं है। कब्र में उतार में थोड़ी सी कबाहत महसूस होती है, अगर कोई उनके भाई और चचा मामू वगैरह हम महरम हैं वो कब्र में उतारे तो बेहतर है, अगर वो ना हो तो हस्बैंड उतार सकता है, क्योंकि उसने जिस समय छुआ होता है तो उस टाइम शैतान को ध्यान डाल सकता है, इसलिए छूने से बचे कब्र में उतार दे। अगर उतारना भी पड़े या कोई भाई हो तो वो जिसम को पकड़े रखिए, जो साइड होगी दोनों तरफ जो चोट जैसी होती है उन्हें पकड़ के कब्र में उतारे, और अगर दूर है तो
उहद के अंदर जो सहाबा किराम की जमात थी इनको हार हुई थी या जीत हुई थी? अगर हार हुई थी तो ये आज समझ नहीं आती कि जब अल्लाह ताला ने मतलब वादा कर दिया था पहले से ही, अल्लाह ताला को तो फ्यूचर का ही पता रहता है, तो हार कैसे हो गई थी? मतलब ये समझ नहीं आ रही है। इनका सवाल ये है कि जंग उहद में सहाबा को हार हुई थी या जीत हुई थी? और अगर हार हुई थी तो अल्लाह का वादा तो मदद का था, तो वो कैसे हार हुई? एक तो वो हार नहीं हुई। आपको पूरा वाक्य में बताता हूँ। 70 सहाबा को दर्रे पर खड़ा किया गया था और उनमें से जब उन्होंने देखा कि हमारी जीत होने लगी तो वो माले गनीमत के लिए अपनी जगह छोड़ के 10 सहाबा को छोड़ के बाकी सहाबा हट गए। खालिद बिन वलीद उस टाइम तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने पीछे से आके हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। और 10-5 लोग और बढ़े तो 70 सहाबा शहीद हुए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक और चेहरे पे जख्म आया, खून से चेहरा भर गया, एक दर्रे में पड़ा ली। उसके बाद जब ये लोग थोड़े जो होश में आए, पहले इन्हें लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई, माज़अल्लाह। जब होश आया, हुजूर उठते हैं तो इनमें फिर जोश आया और जो काफिर इनके ऊपर हमला करके जा रहे थे उनके पीछे दौड़े। उन्होंने दौड़ लगाई, दौड़ के नहीं आए। इससे तो चीज साबित हो गई कि अगर वो रुक जाते, चाहे 70 सहाबा शहीद हो गए, उसके बावजूद जो भी नुकसान होता था वो होता है। यहाँ जो आप कह रहे हैं कि वो नुकसान क्यों हुआ, वो नुकसान अल्लाह के और उसके रसूल का कहना न मानने की वजह से हुआ, जिसे इन्होंने एडमिट किया। लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। कुरान की ये आयत मौजूद है कि उनसे गलती हुई और हमने उन्हें माफ कर दिया। तो इसलिए हमें उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। हम बहुत नाकिस लोग हैं, उनके पैरों के सरों के बराबर भी नहीं। लेकिन ये बताना जरूरी है आप लोगों का ध्यान खोलने के लिए, उनसे जो चूक हुई उनका अल्लाह का उनके रसूल का मामला था। उनके अमाल नीयतें इतनी बुलंद हैं कि हम उन तक नहीं पहुंच सकते। इसकी जो भी चूक हुई वो बताना जरूरी है कि इससे नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब वो होश में आए और उनकी कमजोरी दूर हुई और नबी को उन्होंने जिंदा देखा तो फिर जो जोश आया, फिर वो उनके पीछे भागे और फिर उन्हें खदेड़ दिए, लौट के नहीं आए। वरना अगर उनमें दम था वो लौट जाते। जब उन्होंने देखा ही हमारे पीछे, उन्होंने और दौड़ लगा। ये पूरा रिवायत में लिखा हुआ है, मेरी बात नहीं है। तो आज आप बताएंगे कोई जाना चाहिए कि हार मिलती जीत मिलती, वो नुकसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत का एक मदद था। एक अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं फायदा ही पहुंचाने वाला हूँ, मदद करने वाला भी हूँ और नुकसान भी पहुंचाने वाला नहीं। जी सवाल ये भी है, जैसे आपने बताया कि उमर फारूक की रवायत के हवाले से कुरान में बताया कि कुरान जो है बुलंदी भी अता करता है और पस्ती। पस्ती से क्या मुराद है? इनका सवाल ये है कि पस्ती से क्या मुराद है? बुलंदी भी अदा करता है कुरान और पस्ती। भाई जो लोग इस पे ईमान लाएंगे, इस पे अमल करेंगे, इससे हिदायत हासिल करेंगे, उन्हें बुलंदी मिलेंगी। मैंने आपको बताया जो चीज कुरान से जुड़ी मोहतरम कर दिया जाता है, पहाड़ हो, इलाका हो, नबी हो, जबान हो, कोई भी ठीक। लेकिन जो लोग ईमान में लाएंगे और इसकी बेहुरमती करेंगे और ईमान का दावा करने के बावजूद इस पर अमल नहीं करेंगे, उन्हें पस्ती देखनी पड़ेगी। जो आज हमारी हालत है, ये हदीस हमारे ऊपर फिट बैठती है। जिस हालत में आज उम्मत है ना, उसकी है तो कई वजह है। उसमें बहुत बड़ी वजह
मर्दाना जो मामला है वो तो यही है, मर्द की पहचान क्या है कि वो जबरदस्ती औरत को अपने साथ ना रखे। आप जबरदस्ती के साथ मत रखो, उसे आजाद कर दो, जहाँ वो खुशी से जाना चाहे वहाँ शादी करें। आप कोई अच्छी औरत देके आप शादी करो, टांगों मत उसे यार, उसके नजदीकी पलट के आप भी कह रहे मैं तो नहीं देता था, आप भी नजदीक हो, दोनों लगे आप हो। नबी ने ऐसी औरत के लिए बात कही कि जो बिना वजह तलाक मांगेगी वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। तो आप कम से कम उसके लिए दुआ भी करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे, नहीं मानती तलाक दे दो, उसके लिए दुआ भी करो। मोमिन की शान है वो दुआ करें। भाई जब तक आप तलाक नहीं दोगे तो शादी नहीं करनी। मैंने बता दिया बात, उन्होंने की तो फिर वो ले लो खतरा। मदरसों के बच्चों से कुरान ख्वानी कराना ठीक है? इनका सवाल ये, मदरसे के बच्चों से कुरान ख्वानी करा देते हैं पैसे देके, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। आप अपने घर में अपनी दुकान पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो जज्बात आपके हैं वो मासूम बच्चों को थोड़ी रखेंगे। आपको जितना कलाम याद है आप खुद सारे घर वाले बैठ के वहाँ हो और उन गरीब बच्चों के लिए खाना पकवा के उन्हें वहाँ भेजो। ये नहीं कि उन्हें भीखों को इधर आप बुला के वहाँ खाना खिला रहे हैं। आप बेहतरीन खाना बनवा के यतीम खाने में मदरसे भेजो और सबके की नियत से कुरान खानी खुद करो। कहीं भी तरह से साबित किए हुजूर से या कहीं नहीं लिखा हुआ इस तरह से कुरान खानी करो, खुद कुरान पढ़ो। कुरान बरकत की चीज है, आपके लिए आई। आप अपनी दुकान अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, बरकत के लिए खुद कुरान पढ़ो जितना भी आप। इस्लाह मुआशरे की क्या तदाबीर हो सकती है? इनका सवाल है, इस्लाह मुआशरे की क्या तदबीर हो सकती है? अपने आप को मोमिन बनाना, जो अल्लाह की शरीयत है उस पर खुद, उसके बाद अपने घर वाले, उसके बाद बाहर तबलीग शुरू करना। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, अपने घर वाले फिल्मों में बैठे होते हैं और हम तबलीग करते हैं दूसरों को। सबका हाल यही है, ज्यादातर का तबलीग अपने घर से शुरू कर कुरान का हुक्म है। तो आप पहले खुद अपने ऊपर तबलीग करो, उसके बाद अपने घर वालों पे, उसके बाद मोहल्ले वालों पे, उसके बाद शहर वालों पे, उसके बाद जिले वालों पे, उसके बाद स्टेट वालों पे, उसके बाद मुल्क वालों पे, अगर आपको इतनी मोहलत अल्लाह देता है। लेकिन माशरा इसी तरह फर्क से माशरा बनता है। एक फर्क ठीक होना शुरू कर दे, आप किसी के ऊपर नजर न रखो, अपने देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसे दूर कर दो, इंशाअल्लाह माशरा तशकील आ जाएगा। भाई आप अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह जरूर खुश हो जाओगे। अगली बीवी बहुत अच्छी मिलेगी, तलाक जरूर है अगर वो नहीं मानती। हाँ जी, क्या काला लिबास पहनना मना है और क्या काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है? इनका सवाल है, क्या काला लिबास पहनना मना है और ये क्या जहन्नमियों का लिबास? हाँ, ये अक्सर सवाल आता है भाई। काला लिबास कोई जहन्नमियों का लिबास नहीं है। जहन्नमियों के लिबास के बारे में कुरान ये कहता है कि उन्हें आग का लिबास पहनाया जाएगा, गंधक का लिबास पहनाया जाएगा। काला लिबास में तो ये सवाल भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कपड़ी, आपने सुनी काली कपड़ी वाले? तो हुजूर काली कपड़ी पहनते थे। कैसे हो जाएगा कि काला लिबास पहनना जो है वो मना हो? तो बिल्कुल काला लिबास भी पहन सकते हैं, ये कोई जहन्नमी वाली बात नहीं है। आप नहीं कहें। मेरा सवाल ये है, जो औरत इद्दत गुजार रही हो वो फ़ोन पर बात कर सकती है या पर्दा किससे जायज़ है, किससे नहीं कर सकती? इनका सवाल ये है कि जो औरत इद्दत कर रही हो क्या वो फोन पे बात कर सकती है? बिल्कुल फोन पे बात कर सकती है, लेकिन अपने महरमों से, किसी नामहरम से नहीं। और अगर कोई जरूरी हो, उसके बच्चे छोटे हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो अपने बिजनेस की या अपनी जॉब की बात भी कर सकती है। लेकिन कुरान जो कहता है औरतों के लिए कि जब किसी नामहरम से बात करो तो अपना लहजा सख्त रखो, अल्फाज अपना और लहजा सख्त होना चाहिए। मतलब किसी किस्म की मर्द को ये अंदर नम पोषण पाले हो कि मेरे चक्कर में आए, इसलिए लहजा सबको बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में दोस्त कौन थे? इनका सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में दोस्त, और वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम तो आता है, और भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनके नाम इस तरह से रिवायत हुए हैं। लेकिन अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से दोस्त थे, ये करना होगा। गारे याद कहलाते हैं, मतलब आखिर में क्या है? इस्लाम के अंदर किस टाइप के बड़े मतलब सवाल करना जायज़ नहीं है? जैसे दिमाग के अंदर कुछ बड़े बड़े सवाल भी पैदा होते हैं, तो अगर वो किसी से पूछने जाओ, बड़े आदमी से तो वो कह देता है कि ये बस आए, मतलब इस तरीके से सवाल नहीं करने चाहिए। इनका सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, ये इस्लाम में किस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। भाई हर तरीके के सवाल करने चाहिए,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसार की औरतें सेक्स के सवाल किया करती थी। आप ताजुब की बात है। और फख्र किया करते थे साहबा। यहूदियों को कहते थे कि हमें अल्लाह ने ऐसा नबी दिया जो हमें इस तरीके का तरीके बताता है। कोई सवाल छोटा नहीं, कोई सवाल गंदा नहीं, कोई सवाल ऐसा नहीं जो ना कर सको। ये हमारे उलमाए दीन के पास अगर जवाब नहीं होता या उन्होंने खुद अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि जवाब नहीं देना ठीक है, ये तो फिर उम्मत ही हो जाएगी। ये तो नबी से तो यहाँ तक आगे साहबा कहते थे कि हमें आपके और आपके बारे में ऐसे ऐसे शैतान रसूल से डालता है कि हम बयान नहीं कर सकते। इतने उल्टे सीधे ख्याल अल्लाह रसूल के बारे में। हुजूर ने कहा बता कोई एक तो बात बता कि हुजूर मुझे आसमान से जमीन पे भेज दो, मुझे मंजूर है, मगर मैं जबान दूंगा। तो उनके सवालों का जवाब नबी देते थे। तो ये तो